डैन फेफरमैन भी जो है वो इजराइल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी इजराइल से लाइव जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मनीष मैं आपके पास आऊं क्योंकि आप स्पॉट पे हैं इस वक्त, डैन काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। डैन, a lot of people are speaking here about the double game being played by Pakistan. On the one hand, showing solidarity with Iran, on the other hand, going and meeting with the American president, talking about the Israeli cause. What exactly is Pakistan's stand right now, you think? I think it's exactly like you said. I think Pakistan is playing a double game. Publicly, for the sake of its own public consumption and perhaps to maintain some sort of cordial neighborly relations with its very large and powerful Muslim neighbor, by the way of which it has occasional military conflicts and tensions with. It is pretending to be on its side. It's saying that it's aligning with it. As far as I'm aware, it is the only Muslim nation in the world who has said that. UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. The entire Middle East has virtually refrained from officially taking sides in this conflict. Behind the scenes, the way I can see the visit of the Pakistani army chief to meet President Trump in Washington, plus journalists and experts that I'm in touch with on the ground in Pakistan, make it quite clear that the regime, the military regime there has no interest in any kind of conflict with Israel, nor do I think it has the capability of a conflict with Israel. So I think it is playing the public messaging game to show that it's standing by its neighbor. In practice, I think it is coordinating with the United States to stay put, to stay out of this, frankly, and I think in the long term, I think the Pakistani regime, maybe not so much the people, would be interested in joining the Abraham Accords when we're able to get to that second stage. But is there any assurance to Israel that America is going to join its war against Iran? Can you repeat that, please? Is there any assurance from America to Israel that the US is going to join its war against Iran? I've not seen, or I'm not aware of any public assurances of the matter. If something is being coordinated on the highest and most covert official levels, then of course I'm not privy to that. What we are seeing, however, is clear strategic messaging by President Trump himself that the battle plans for America's involvement have been approved. It's a matter of decision whether the United States gets involved or not. That's one. Two, we see the United States moving heavy Air Force equipment, fighter jets, bombers, refuelers, cargo jets closer, whether in the Mediterranean or in bases in Europe that are in greater proximity to Iran, so that if the U.S. Proverbially pulls the trigger on joining this conflict against Iran's nuclear capacity, it will be in the position to do so. I personally think this is a sort of warning sign, very clear warning sign to the Iranians for them to back down, for them to accept what he calls unconditional surrender and give up their nuclear program, because an American escalation is 10 times, 20 times more severe than what Israel is already bringing to the table, and Iran is under quite a bit of pressure at the moment. डैन बता रहे हैं, जो कि इजरायली विश्लेषक है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका तैयार हो रहा है टू पुल द ट्रिगर, और उसमें जो हलचल दिखाई दे रही है जमीन पर इजराइल में इस वक्त क्या हलचल है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप, मनीष, बता चुके हैं कि खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए। खामेनेई ने जवाब देते हुए कहा है, द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन्स अस विद एन अब्सर्ड रेटरिक, यानी कि वो जो बकवास कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। यही फैक्ट कि ज़ायनिस्ट रिजीम के अमेरिकन दोस्त अब सीन में आ गए हैं, इसका मतलब कि इजराइल बहुत ही कमजोर अपने को महसूस कर रहा है। अगले कुछ घंटों में क्या होगा, मनीष? देखिए, बिल्कुल पद्मजा, देखिए युद्ध क्षेत्र में खास करके उस जगह पर जहां पर मिसाइल गिरा है
वहाँ से जो मैं समझ पा रहा हूँ उसको मैं आसान शब्दों में डिकोड करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि ईरान और इजराइल का युद्ध चरम पर है, ये तो दुनिया देख ही रही है। ये उतना आसान नहीं है जितना इजराइल का हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ था। ये मुश्किल होगा। ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के पास तमाम अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद उसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ये भी बात सच है, लेकिन ये भी बात सच है कि इजराइल के इस जंग में अमेरिका का उन्हें पूरा साथ है। अभी आप बात कर रही थी पाकिस्तानी जनरल का रोल। देखिए, पाकिस्तानी जनरल का रोल कुछ नहीं है, बस वो मोहरा है, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेस चाहिए अमेरिका को। जिस वक्त अमेरिका फुल स्केल ईरान के खिलाफ वॉर कर रहा होगा, उस वक्त उन्हें वहाँ से ज़मीन चाहिए, और इसीलिए उन्हें बुलाकर खिलाया पिलाया जा रहा है कि जाओ बेटा वहाँ पर जाकर तैयारी करो, अपने पब्लिक को कैसे कन्विंस करना है वो तुम जानो, लेकिन हमें वो बेस चाहिए ताकि वहाँ से हम ईरान पर अटैक करेंगे। पहली बात, इसलिए वो लोग बयानबाजी कुछ और कर रहे हैं, लेकिन होगा यही हाल ट्रंप का है। ट्रंप चाहे जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, सच यही है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते किसी भी ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति से ऊपर की चीज़ है, और ऐसी हालत में अमेरिका साथ में है और वो साथ में रहेगा। इजराइल में भी अमेरिका के 7 लाख से अधिक लोग हैं। अब इस युद्ध में अमेरिका के लिए कौन सा मोमेंट, पर्ल हार्बर मोमेंट होगा, ये देखने की वाली बात होगी जब वो डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका इनडायरेक्टली इस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। अमेरिका ने तमाम हथियार दे रखे थे, कुछ हफ्ते पहले से लगातार दिए जा रहे थे। बकौल ईरानी, अमेरिका ने दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप बयानबाजी कर रहे थे, ईरान का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे, और लेकिन इस बीच में इजराइल की तैयारी चल रही थी और इजराइल ने हिट कर दिया था। हाँ, एक हफ्ते के इस युद्ध में अगर आप देखें तो कौन 19 है कौन 20 है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं इस वक्त होलोन में हूँ, इससे पहले बेतसिवा में उस हॉस्पिटल में गया था। हर जगह पर तबाही है, लेकिन इजराइल के लोग एक बात कहते हैं, उनका कहना यह है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि जब अभी वो संभाले नहीं संभल रहा है, तो सोचिए अगर ईरान के पास परमाणु हथियार बन गया तब क्या होगा। उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त कौन सही कौन गलत है इससे अलग जाकर आप सीधे समझिए तो कुल मिलाकर यह है कि अब इसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब इस युद्ध में ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा। और एक आखिरी बात जो मेरी समझ में आ रही है, दो वॉर जोन कवर करके, कि सभी महाशक्तियों ने जैसे आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। यूक्रेन में रूस को फ्री हैंड मिल गया, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका युद्ध में है, और ये जैसे ही खत्म होगा आप देखेंगे चीन का ताइवान पर अटैक होने वाला है।